Hello dear students, this is Rajesh Viz. Welcome to all of you in my YouTube channel. Today again we are going to discuss a new topic. This is elementary transformation. We are going to find the inverse of a matrix by using elementary transformation. This elementary transformation may be row transformation or it may be a column transformation. So for this, we should know about the sum algorithms. Okay, how we will use this, how we can find the inverse by using this method. This is a very important method. In the previous sessions, we have learned how we can find the inverse by using the different methods. That is, A inverse equals to adjoint A upon determinant of A. And the other method, that is polynomial method, we know about this. And we also know about the one more method. This is the product, find out the product of two matrices, and with the help of the product of these two matrices we can find the A inverse, and then we can use this inverse in the simultaneous equations. Now here the today my topic is elementary transformation. So today we will learn that is how we can find the inverse by using this row transformation. So this is a very important transformation as we learn the properties of the determinant, that different properties if one row can be written in the algebraic expression of the other rows or columns. In this session, we will learn that how we can find the inverse of the matrix by using this elementary transformation. So here if we will use the row transformation, then always in all the terms we will use only the row transformation. If we are using the column transformation, so definitely we will use up to and column transformation only the columns operation if we are using the column transformation. So first of all we will come with know about that what is the algorithm for solving this type of questions. So see here, so what is the algorithm for this? First of all we will obtain a matrix A. जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसे हम लिख लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, देन वी विल राइट द इक्वेशन एंड यू कैन सी दिस इज द इक्वेशन वी कैन राइट हियर A equals to I into A. What is IN? IN will very well know about IN. This is the identity matrix of given order. Whatever order of this A, and this will be the same order of this identity matrix. This is the relation for the row transformation, that is A equals to I into of A. If we are go for the column transformation, then we can write I equals to A into Y. So we should know about this is the relation to find out the inverse with the help of the row transformation. Then what we can do? Then we are doing the performing the sequences of elementary operations successively on A on the left hand side as well as on the right hand side. It means दोनों साइड एक यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम इसमें जो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पर आई के साथ इट मीन्स वी विल लीव दिस ए, हम इस ए को लीव कर देंगे, इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, इसको एज इट इज हम छोड़ देंगे. हमने ऑपरेशन जो लगाने हैं लेफ्ट हैंड साइड में इस ए पर लगाएंगे और राइट हैंड साइड पे इस आई पे लगाएंगे. इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाएंगे. और ये स्टेप्स हमने तब तक करते जाना है जब तक ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाती. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट मीन्स इफ इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स देन इट विल बी अ 1 0 0 1. अगर इफ इट इज अ 3x3 मैट्रिक्स इट मीन्स that is 3 order matrix, then it will become 1 0 0 0 1 0, it is 0 0 1. It means we will make I here with the help of some sequences elementary operations. At last, तो अब हम देखेंगे जब हमारे पास I इधर बन गया और A के साथ जो मैट्रिक्स हमारे पास B आएगी, मतलब whatever the matrix, if we are changing this I, then we get a new matrix, then this new matrix will be the inverse of A. So the inverse of A will be B, and this will be more clear with the help of some examples. So we will go through with some examples. This is my first example which I am going to discuss with you. This is a 2x2 matrix I have taken here, and we are going to find out the elementary transformation, row elementary transformation, find out the inverse of this matrix. So first of all we know that the matrix A is given. This is a row transformation. अभी हमने पढ़ा row transformation के लिए हमें कौन सा relation याद है? A equals to I into A. So we will write down the this relation A equals to IA. Now
अब हम इस a की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। a की वैल्यू हमारे पास 1327 है एंड इस i की वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज 1001. We will use the values whatever the given we have written here, and now we will use the sum operation because here we are going to use the elementary row transformation. अब रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ओनली वी आर गोइंग विद द रो ऑपरेशंस. इट मीन्स अब हमें करना क्या है, अब हमें पिछली वाली एल्गोरिथम में याद है कि हमें यहाँ पर 1 यहाँ पे 1 बनाना है और ये दोनों एलिमेंट को हमें 0 बना देना है. इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ बनाना है और जो चेंजेस हम इधर करेंगे तो सेम चेंजेस हमने इधर भी करने हैं. इट मीन्स हमने यहाँ पर 0 बनाना है, तो इट इज़ वेरी इजी हाउ वी मेक इट 0. अगर हम R2 को चेंज करें, R2 को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें. R2 को चेंज करना चाहते हैं, R2 को कैसे चेंज करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें माइनस कर देंगे R2 से. देन व्हाट हैपन, देन दिस 2 बिकम 0. सो वी हैव अप्लाइड दिस ऑपरेशन, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R. अब 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें माइनस कर दिया, 0 हो गया. 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 माइनस कर दिया, दिस विल बी 1. सेम ईयर वी विल डू, 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 से माइनस करेंगे, माइनस ऑफ 2, 2 से मल्टीप्लाई किया, इट विल रिमेन्स द सेम. नाउ एक 0 हो गया, ये दोनों 1 हो गए. अब हमें इसे 0 करना है. अगेन अब R1 को चेंज करना पड़ेगा, सॉरी R2 में हम 3 का मल्टीप्लाई करें और उसे अगर हम R1 से माइनस कर दें, वी गेट द आंसर. तो सही है, तो सेम R1 चेंजेस टू R1 प्लस माइनस ऑफ 3R2. इट मीन्स 3 का मल्टीप्लाई करके हमने माइनस कर दिया. तो अब इसमें सेकंड रो रिमेन्स द सेम, सेकंड रो को हमने एज इट इज लिखना है बोथ साइड्स. अब इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई करना है और इसमें माइनस करना है, इट रिमेन्स द सेम 1. और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें माइनस करेंगे एंड व्हाट हैपन, दिस विल बिकम्स 0. अब 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें माइनस किया, 3 माइनस 3 0 हो गया. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है. अब हमारा मेन काम यही था कि हमने इस आइडेंटिटी बनाना है और सेम जो प्रोसीजर हमने इधर किया वही प्रोसीजर, यही ऑपरेशन हमने इधर भी लगाना है. हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें जाके माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 2 6 प्लस 1 7 आ गया. और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, माइनस ऑफ 3 आ गया. एंड नाउ यू कैन सी हियर, अब मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी एंड दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया. तो वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स, that is a into b equals to I, then b is the inverse of a and a is also inverse of b. Here we are going to find out the inverse of a, then this matrix b is the inverse of a. So at last we write a inverse equals to 7 minus 3 minus 2 1. We have seen here that this is a very simple steps, just we have to follow only the row operation. Only row operation we will follow here because we are going to solve this question with the row transformation. So we will use this formula, this is a equals to I into a, and we are trying to make left hand side matrix as an identity matrix, and the same operations which we are using in left side we will same use in the right hand side, and at last which matrix we will get with the A, this will be the inverse of given matrix A. Now see the second part, second question. Now students, see the second question. Here again we are going to find out the inverse of the given matrix. Matrix A हमें given है, this is, and we know that we are going to solve with the row transformation. अब रो ट्रांसफॉर्मेशन की हमने फिर से वही फॉर्मूला लिखना है, a इक्वल्स टू आई. अब इस a और i की वैल्यू हम पुट कर देंगे. अब a एंड i की वैल्यू में बताया, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ वी नो हमें अब क्या करना है, हमें इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है और ये दोनों डायगोनल एलिमेंट को हमें 1 करना है. तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, अगर हम इस R2 को चेंज करें, R1 को भी हम रहने देते हैं, R2 को चेंज करना चाहते हैं, R2 को चेंज करें और यहाँ पर 0 बना सकते हैं. कैसे, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें 1 में, 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करें and 3 minus 3 0 हो जाएगा. सेम we will do here, R2 changes to R2 minus 3R. 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, 0 हो गया. 3 का मल्टीप्लाई करके 7 से माइनस करेंगे, 3 2 6 7 minus 6 1 हो गया. एंड सेम ईयर 1 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करें, 0 minus 3 minus of 3. And now we have to change R1 now, because R1 में हमारे पास एक 1 आ चुका है, एक हमारे पास 2 है, बट 2 को हमें क्या करना है, 0 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए.
अब हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, R2 को एज इट इज छोड़ देंगे, R1 को चेंज करेंगे। और R1 को कैसे चेंज करेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2, देन दिस टर्म 2 बिकम्स 0। अब आप देख सकते हैं R1 को हमने चेंज कर दिया, R1 टेंस टू R1 प्लस माइनस ऑफ 2R2, 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने 0 बना दिया। जैसे 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 0 2 से 0, 1 से कोई अनचेंज हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें माइनस करेंगे, दिस बिकम्स 0। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। राइट हैंड साइड भी हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें जाकर माइनस करेंगे, देन 1 प्लस 6, दिस बिकम्स 7। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, इसमें माइनस करेंगे, माइनस ऑफ 2। The what happen? You can see here, this is A, this matrix is B, and the product of these two matrices is equals to identity matrix. It means this is the inverse of A. Hence, we can say that A inverse equals to 7 minus 2 minus 3 and a 1. So you can see these are the very simple steps for the 2 cross 2 matrix. Now we are going to forward for the next 3 cross 3 by using the elementary row transformation. Find the inverse of this matrix, and you can see this is a 3 cross 3 matrix, and we are going to find out the inverse of this matrix by using the elementary row transformation. So elementary row transformation, we know that the formula that is A equals to I into A, and we are going to use the same method here. अब A और I की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ पर A और I की वैल्यू हमने एज इट इज यूज कर ली, पुट कर दी। अब हमारे पास क्या प्रोसीजर है कि यहाँ पर हमने ये वन और ये डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 करने हैं, एंड द रेस्ट एलिमेंट्स हमें क्या बनाने हैं, 0 एलिमेंट बनाने हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंजेस यहाँ पर होंगी वही सेम चेंजेस हमने यहाँ करने हैं। ओनली द रो ऑपरेशंस आर अलाउड हियर बिकॉज वी आर यूजिंग हियर द elementary row transformation formula, so that only row operations are allowed here, no column transformation we will do. Now see here, अब यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए। 1 कैसे बन सकता है, अगर हम इस 2 को माइनस कर दें 3 से, तो ये हमारा 1 बन जाएगा। तो पहला स्टेप हम यही शुरू करेंगे, R1 को हम चेंज करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, हमने यही किया, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, और ये माइनस होके 1 बन गया, यहाँ माइनस होके तो सेम एज इट इज ये माइनस हुआ, तो दिस विल बी माइनस ऑफ 1। और सेम स्टेप्स हमने इधर किए, यहाँ जाके माइनस होगा, नो चेंज, ये इसमें माइनस हो गया, माइनस ऑफ 1, ये इसमें माइनस होगा, नो चेंज। So second row and third row remains unchanged because only we have changed R1. The first row we have changes with this operation, R1 tends to R1 minus of R2. Now अब यहाँ पर 1 आ चुका है, अब हमें इन दोनों को 0 करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू मूव। अब हमने यहाँ 1 बना लिया, अब इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है। इन दोनों एलिमेंट को हम 0 कैसे बना सकते हैं, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इस 1 में और इसमें से माइनस कर दें, ये 0 जाएगा, और अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके R3 से माइनस करें तो ये भी 0 जाएगा। तो सेम R2 और R3 को हम चेंज करेंगे, R2 और R3 चेंजेस बाई R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर दिया, 0 हो गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, ये 2 बन गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस किया, दिस विल बी 1। एंड सेम हियर, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस किया, 0, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस किया, माइनस ऑफ 2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस किया, दिस विल बी 3। एंड जो हमने ऑपरेशन लेफ्ट साइड यूज किया, सेम ऑपरेशन हम यहाँ राइट साइड में यूज करेंगे। R2 और R3 को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। देन R2 चेंज हो गया, तो 0 में हम माइनस कर रहे हैं माइनस ऑफ 2, माइनस 2 रिमेन्स, और 1 में से हम माइनस कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस ऑफ 2, दिस इज 3 बन गया। एंड 0 में 0 चेंज कर रहे हैं, नो इफेक्ट। सेम ईयर 0 माइनस ऑफ 3 माइनस 3 हो गया, 0 प्लस ऑफ 3 प्लस 3 हो गया, एंड 1 माइनस 0 1। देन व्हाट हैपन दिस। अब यू कैन सी हियर, यहाँ पर 2 एलिमेंट हमारे पास क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर 2 एलिमेंट 0 बना दिए। अब हम यहाँ पर 1 बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा एलिमेंट क्या है, 1 आना चाहिए, यहाँ पर हमें 1 आना चाहिए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, R2 को डिवाइड कर दें, R2 चेंजेस टू R2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ या डिवाइड बाई 2। इसमें 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 हो गया, ये हाफ हो गया, यहाँ पर भी सेम है, माइनस हो गया 3/2 एंड 0। अब यहाँ 1 आ चुका है, अगर इस 1 को अगर हम इसमें ऐड कर दें, ये 0 जाएगा, और इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर इसमें ऐड कर दें, ये भी 0 जाएगा। तो वी विल डू द सेम स्टेप्स। हम R1 और R3 को चेंज करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 प्लस
R2 and R3 changes to R3 plus 2R2. सेम ऑपरेशन वी विल यूज हियर। हम जैसे ही इसमें यूज करेंगे ये दोनों एलिमेंट जीरो, क्योंकि इसको अगर इसमें ऐड किए ये जीरो हो गया, इसको 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किए जीरो हो गया। सेम ईयर इसमें हाफ को हम -1 के साथ ऐड करेंगे तो दिस इज माइनस हाफ हाफ, और हाफ को हम 2 के साथ इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे देन दिस विल बी 4। और सेम ऑपरेशन हमने राइट साइड में ही यूज करना है। सेम वही ऑपरेशन जो हम लेफ्ट साइड में यूज कर रहे हैं, सेम ऑपरेशन हम राइट साइड में यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो एलिमेंट ये जीरो हो गए, दो एलिमेंट ये जीरो हो गए। नाउ वी हैव टू मेक दीज टू एलिमेंट्स जीरो। तो फर्स्टली वी हैव टू मेक वन हियर। फॉर दिस वी विल डिवाइड R3 by 4। R3 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई मल्टीप्लाइड बाई 1 by 4। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं, दिस बिकम 1 एंड दीज आर ऑल्सो एलिमेंट गेट डिवाइडेड बाई 4। सारे एलिमेंट डिवाइड हो गए, यहाँ पर 1 आ गए, तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स विल बिकम 1 1 1। दीज एलिमेंट्स आर जीरो बट वी हैव टू मेक दीज टू एलिमेंट्स जीरो। अब इन दोनों को जीरो कैसे बना सकते हैं? अब इन दोनों एलिमेंट को हमें जीरो बनाना है। अब जीरो बनाने के हमारे पास क्या है, हम इसमें हाफ का मल्टीप्लाई करें और क्या करें, इस R1 के साथ ऐड कर दें और हाफ का मल्टीप्लाई करें, इस R2 के साथ जाके माइनस कर दें। दोनों में ये एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो हमने यही ऑपरेशन यूज करना है। R1 को चेंज किया, R1 प्लस हाफ ऑफ R3 एंड R2 टाइम्स टू R2 प्लस माइनस हाफ ऑफ R3। तो व्हाट हैपन, दीज टू बिकम्स जीरो। अब जो ऑपरेशन हमने इधर लेफ्ट साइड में यूज किया, सेम ऑपरेशन वी विल यूज इन द right side. You can see here now this is identity matrix, and here we have to be careful with the calculations because this is not a simple calculation. तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई दैन हमारे पास जो इन्वर्स आएगा वो टोटली डिफरेंट होगा फ्रॉम आवर आंसर। सो बी केयरफुल विद द कैलकुलेशन। तो इफ पॉसिबल यू कैन मेक अ सिंपल कॉलम इन लेफ्ट हैंड साइड एंड डू द रफ वर्क स्पेशली फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि A और B का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बन गए, लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई तो डेफिनेटली वी नो दैट दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आई होप 2x2 मैट्रिक्स एंड 3x3 मैट्रिक्स में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर 2x2 में हमारे पास थोड़े स्टेप्स होते हैं, बस 3x3 में हमारे पास स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन करने का मेथड सेम ही है। इधर हमें लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए और राइट साइड में जो मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, तो दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू एंड लेट मी विल फिनिश दिस टॉपिक। नाउ एग्जांपल नंबर 4, बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगेन वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगेन वी आर गोइंग टू यूज द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। सेम फार्मूला वी विल राइट हियर, ए और आई की वैल्यू पुट कर देंगे, ए और आई की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एलिमेंट हमारा पहले से ही 1 है, हमें इन दोनों को जीरो बनाना है, और ये एलिमेंट हमारा पहले से जीरो, हमें बस इसको जीरो बनाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली R2 को हम चेंज करेंगे। R2 को कैसे चेंज करेंगे, R2 को चेंज करने के लिए R2 टेंस टू R2 प्लस R1। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा, R2 टेंस टू R2 प्लस R1। जैसे ही हमने इसके साथ ऐड किया दिस बिकम 0 1 और -1 ऐड किया 0, 2 + 3 5 हो गया, और इसको ऐड किया -2। सेम स्टेप्स वी विल यूज हियर इन राइट साइड। इसको इसके साथ ऐड किया 1 हो गया, इसके साथ ऐड किया, इट रिमेंस द सेम। नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन में हमने इस एलिमेंट 5 को 1 बनाना है और यहाँ पे 0। हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें अगर R3 में, 2 का मल्टीप्लाई R3 में करें और R2 में जाके ऐड कर दें, देन 2 2 4 -4 इसमें ऐड होगा, देन 5 -4 1 होगा, एंड इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें ऐड करें 0 हो जाएगा। तो सेकंड रो हमारी 0 1 0 हो जाएगी, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड। तो हमने R2 को ऐसे ही चेंज किया, R2 टेंस टू R2 प्लस 2 R3। तो ये हमारे पास रो चेंज हो गई, 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें ऐड कर दिया, एंड 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, तो दिस बिकम्स 1 दिस बिकम्स 0। और सेम ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें ऐड करेंगे, रिमेंस द सेम, 2 का मल्टीप्लाई किया ऐड किया रिमेंस द सेम, एंड 2 का मल्टीप्लाई किया ऐड किया रिमेंस द सेम। दिस इज 0 प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं, इन दोनों एलिमेंट को हम 0 कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इस R2 में 2 का मल्टीप्लाई करें, R3 में ऐड कर दें और R1 में सब्ट्रैक्ट कर दें, then these two elements become 0, then we will do the same। R1 और R3 को चेंज करने जा रहे हैं हम, R1 changes to R1 minus R2 and R3 changes to R3 plus R2। तो twice of R2, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R3 और R1।
तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 0 आ गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें सब्ट्रैक्ट कर गया, रिमेन्स द सेम। इसमें R2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें जाके ऐड कर दिया, दिस बिकम्स 0। तो सेम हियर वी विल डू इन द राइट हैंड साइड एंड वी विल गेट दिस मैट्रिक्स। Now you can see most of the elements become 0 and just this element is left here. अब हम क्या कर सकते हैं, R1 को चेंज करेंगे। R1 को कैसे चेंज करेंगे, R1 टेंस टू R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R3। मतलब अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दें, देन व्हाट हैपन, दिस बिकम्स 0। तो सेम वी विल डू R1 चेंजेस टू R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R3। अब जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, 0 हो गया, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई और ये करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गए, वी नो दैट दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज B which is the inverse of A, hence we can say that A inverse of this matrix is this. So this is a very method important how we can find the row transformation, elementary transformation. So dear students, I hope you like this video and don't forget to like and share this video with your friends and try to solve this type of questions. If you are try to solve this type of question, definitely you can get your answer. So God bless you. Thank you. Have a nice day.